تحریر اسدار چودھری۔ ناظرین، آج کی کہانی ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی۔ ایک ایسا وزیر اعظم جس کے قتل نے پاکستان کی سیاست اور ریاست کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ لیاقت علی خان کے قتل سے ایک دروازہ تو یہ کھلا کہ پاکستان میں وزرائے اعظم قتل بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے خلاف قتل کی سازشیں بھی ممکن بنائی جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیاقت علی خان کے قتل سے سیاسی خلا بھی پیدا ہوا۔ یہ سیاسی خلا سیاسی عدم استحکام کو جنم دینے کی وجہ بنا اور اسی سیاسی خلا کو ملٹری اور سول بیوروکریسی نے کامیاب طریقے سے پر کرنے کی کوشش بھی کی۔ لیاقت علی خان ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی اور 1922 میں انگلینڈ بار میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1923 میں ہندوستان واپس آ گئے اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ 1936 میں لیاقت علی خان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بنے۔ لیاقت علی خان کا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا اور ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ لیاقت علی خان 2 اکتوبر 1896 میں کرنال کے ایک نامور نواب جاٹ خاندان میں پیدا ہوئے۔ لیاقت علی خان نواب رستم علی خان کے دوسرے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ محمودہ بیگم نے گھر پر ہی آپ کے لیے قرآن اور احادیث کی تعلیم کا انتظام کروایا۔ 1918 میں آپ نے MAO کالج علی گڑھ سے گریجویشن کیا۔ 1918 میں ہی آپ نے جہانگیر بیگم سے شادی کی۔ شادی کے بعد لیاقت علی خان برطانیہ چلے گئے، جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1923 میں برطانیہ سے واپس آنے کے بعد لیاقت علی خان نے اپنے ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1924 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ اس اجلاس کا مقصد مسلم لیگ کو دوبارہ منظم کرنا تھا۔ اس اجلاس میں لیاقت علی خان نے بھی شرکت کی۔ 1926 میں آپ اتر پردیش سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1940 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہونے تک آپ UP اسمبلی کے رکن رہے۔ 1932 میں آپ نے دوسری شادی کی۔ آپ کی دوسری بیگم رینا لیاقت علی تھی، جو کہ ایک ماہر تعلیم اور معیشت دان تھیں۔ آپ لیاقت علی خان کے سیاسی زندگی کی ایک بہتر معاون ثابت ہوئیں۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ لیاقت علی خان کے قتل کو 7 دہائیاں ہو گئی ہیں، لیکن ان کا قتل آج بھی ایک معمہ ہے۔ آپ کے قتل کے محرکات کیا تھے یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ان کے قتل کے بعد موقع واردات پر بہت سے سوالات نے جنم لیا جن کا آج تک جواب نہیں مل سکا۔ لیاقت علی خان پر قاتلانہ حملے کے فوراً بعد کمپنی باغ میں ہونے والے واقعات پر ان گنت سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے جلسے میں صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ اور IG پولیس تو موجود تھے، مگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ ممتاز دولتانہ، IG پولیس قربان علی خان اور DIG CID انور علی غائب تھے۔ در حقیقت جلسہ گاہ میں فرائض منصبی پر مامور پولیس کا اعلیٰ ترین عہدیدار راولپنڈی کا SP نجف خان تھا۔ پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل یوسف خٹک پنڈی میں تھے، مگر جلسہ گاہ میں موجود نہیں تھے۔ گولی کی آواز سنتے ہی نجف خان نے پشتوں میں چلا کر کہا، اسے مارو۔ نجف خان نے پنڈی پنجاب کے جلسے میں پنجابی کی بجائے پشتو کیوں استعمال کی؟ کیا انہیں معلوم تھا کہ قاتل افغانی ہے؟ ان کے حکم پر سید اکبر کو ہلاک کرنے والا انسپیکٹر محمد شاہ بھی پشتو بولنے والا تھا۔ کیا پولیس کا ضلعی سربراہ اضطراری حالت میں یاد رکھ سکتا ہے کہ اس کے درجنوں ماتحت تھانے دار کون کون سی زبان بولتے ہیں؟ کیا تجربہ کار پولیس آفیسر نجف خان کو معلوم نہیں تھا کہ وزیر اعظم پر حملہ کرنے والے کو زندہ گرفتار کرنا ضروری ہے؟ جب انسپیکٹر شاہ محمد نے سید اکبر خان پر 1 2 نہیں 5 گولیاں چلائیں، اس وقت سفید پوش انسپیکٹر ابرار احمد نے حاضرین جلسہ سے مل کر قاتل سے پستول چھین لیا تھا اور اسے قابو کر رکھا تھا۔ کیا انسپیکٹر شاہ محمد قاتل پر قابو پانے کے بجائے اسے ختم کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے؟ لیاقت علی کے صاحبزادے اکبر لیاقت علی کا کہنا ہے کہ سید اکبر کو تو خامخواہ نشانہ بنایا گیا، اصل قاتل کوئی اور تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں
कि लियाकत अली खान को गोली सामने से नहीं अकब से मारी गई थी। जलसा गाह में मौजूद मुस्लिम लीग के गार्ड सैयद अकबर पर टूट पड़े। उसके जिस्म पर भालों के दर्जनों जख्म थे। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म के आसपास बहुत से मुसल्लह अफराद मौजूद थे, जिससे नाक़िस हिफाजती इंतजामात की निशानदही होती है। नजफ खान के हुक्म पर हिफाजती गार्ड ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जलसा गाह में अफरा तफरी फैल गई और जख्मी वज़ीर आज़म को तिब्बी इमदाद पहुंचाने में रुकावट पैदा हुई। इस हवाई फायरिंग का मकसद वाज़े नहीं हो सका। इस कत्ल के 10 रोज बाद ही यानी 25 अक्टूबर 1951 को उस वक्त के हुकूमत ने कत्ल की तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील दे दिया था, जो फेडरल कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद मुनीर की सरबराही में पंजाब के मालियाती कमिश्नर जनाब अख्तर हुसैन पर मुश्तमिल था। इस कमीशन का दायरा कार लियाकत अली खान के कत्ल के मुहर्रिकात का पता चलाना नहीं, बल्कि ये मालूम करना था कि लियाकत अली खान को किन हालात में कत्ल किया गया। इस मौके पर हिफाजती इक़दामात कैसे थे, इंतजामात की कमी और नाकामी की जिम्मेदारी किस पर है, और किसी ऐसी तकरीब जहां सफ़े अव्वल के कायदीन मौजूद हों, वहां सिक्योरिटी इंतजामात किस नौयत के होने चाहिए। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 17 अगस्त 1952 को शाया की थी। दर हकीकत इस कमीशन का दायरा कार महज इंतजामी गफलत का जायजा लेना था, जिसका नतीजा ये निकला कि पंजाब और सरहद मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान कत्ल की तफ्तीश पर तवज्जो देने के बजाय गफलत के इल्जामात की सफाई पेश करने में मसरूफ हो गए। SP नजफ खान ने इंक्वायरी कमीशन को बताया कि उन्होंने अपने मातहतों को हवाई फायरिंग का हुक्म नहीं दिया, बल्कि SP ने अपने मातहतों से जवाब तलबी कर ली। इंक्वायरी कमीशन के सामने इस जिमन में पेश किया जाने वाला हुक्म 29 अक्टूबर का था। ताहम अदालत ने राय दी कि रिकॉर्ड में तहरीफ की गई थी। असल तारीख 20 नवंबर को बदलकर 29 अक्टूबर बनाया गया, मगर इसके नीचे असल तारीख 20 नवंबर साफ दिखाई देती थी। जाहिर है कि नजफ खान ने फायरिंग का हुक्म देने के इल्जाम की तरदीद का फैसला 20 नवंबर को किया। सरकारी कागजात में रद्दोबदल SP नजफ खान के साजिश में मुलविस होने या कम से कम पेशा वराना बददियानती का पुख्ता सबूत था। इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक नजफ खान ने एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के तौर पर अपने फराइज की अदायगी में कोताही की थी। इस अदालती राय की रोशनी में नजफ खान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई हुई, लेकिन उन्हें बाइज्जत बहाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म के जलसे में मुमकिन हंगामी सूरत हाल के लिए तिब्बी इमदाद का कोई इंतजाम नहीं था, हत्ता के किसी जख्मी को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं थी। चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चल रही थी और चंद अफराद इस बगदड़ में सैयद अली अकबर को खत्म करने में मसरूफ थे। कुछ लोग एक वजनी आराइशी गमला उठा लाए और उसे सैयद अकबर पर दे मारा, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं। इस अफरा तफरी में सैयद अकबर पर हमला करने वालों का इत्मीनान हैरान कुन था। सैयद अकबर ने जर्द रंग की शलवार कमीज पर अचकन पहन रखी थी। ये खाकसार तहरीक की वर्दी नहीं थी। वारदात के फौरन बाद ये अफवाह कैसे फैली कि कातिल खाकसार था, बल्कि सूबा भर में खाकसारों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गईं। क्या ये अवाम के इश्तियाल को किसी खास समत मोड़ने की सोची समझी कोशिश थी? ख्वाजा निजामुद्दीन नथिया गली में थे, जबकि गुलाम मोहम्मद पिंडी में ही थे। दोनों ने जलसे में शिरकत की जहमत नहीं की। अलबत्ता वज़ीर आज़म के कत्ल की खबर पाते ही ये असहाब सुलह मशवरे के लिए जमा हो गए। मुश्ताक गुरुमानी की गाड़ी जलसा गाह में उस वक्त पहुंची जब नीम मुर्दा वज़ीर आज़म को जलसा गाह से बाहर लाया जा रहा था। वज़ीर आज़म की मौत की तस्दीक होते ही गुरुमानी साहब उनके जस्दे खाकी को अस्पताल छोड़कर अपने घर चले गए और अगले रोज कराची में तदफीन तक मंजर आम पर नहीं आए। नाजरीन, इस साजिश के डांडों पर गौर व फिक्र करने वालों ने 3 अहम किरदारों की रावलपिंडी से बैक वक्त दूरी की तरफ इशारा किया। सेक्रेटरी दिफा सिकंदर मिर्जा कराची में टेनिस खेल रहे थे। फौज के सरबरा अयूब खान लंदन के अस्पताल में थे और सेक्रेटरी खारजा इकरामुल्लाह एक खास मिशन पर पोलैंड में बैठे अगले अहकामात के मुंतजर थे। इंक्वायरी कमीशन के नताइज नहायत मुबहिम और बड़ी हद तक बेमायनी थे। मिसाल के तौर पर हम बयान करदा वाकयात की बिना पर कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। मामला ज़ेरे तफ्तीश है। तहकीकात करने वाले ऑफिसर कई नजरियात पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। नंबर 2, इस ज़िमन में 3 साजिशों का सुराग मिला है, जिनमें से 2 का एक दूसरे से ताल्लुक है और तीसरी के मुतालिक मरकजी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान में खतो किताबत हो रही है। हमने इन साजिशों की तफसील बताने से गुरेज किया है, क्योंकि इनका इंकशाफ मुफादे आमा में नहीं है।
सैयद अकबर का किसी साजिश से ताल्लुक मालूम नहीं हो सका। बहरहाल एक काबिल पुलिस ऑफिसर मसरूफ तफ्तीश है। हमारा ख्याल है कि एक या दो साजिशों से सैयद अकबर के ताल्लुक का पता मिल जाएगा। नंबर 4, अगर सैयद अकबर जिंदा मिल जाता तो हमें यकीन था कि हम ऐसे भयानक मुजरिम की साजिशों का अता पता मालूम करने में कामयाब हो जाते। सैयद अकबर की मौत के मुतालिक पुलिस रिपोर्ट में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह की फायरिंग का कोई जिक्र नहीं किया गया। इस चशमपोशी का मकसद पुलिस की गफलत या मिली भगत पर पर्दा डालना था। हुकूमत ने बेगम रैना लियाकत अली खान को हॉलैंड में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर कर दिया ताकि उन्हें खामोश कराया जा सके। अमेरिकी वजारत खारजा की खुफिया दस्तावेजात में लियाकत अली खान कत्ल केस के हवाले से जो आखिरी दस्तावेज मौजूद है वो 16 अक्टूबर 1954 को बेगम रैना लियाकत अली खान का जारी करदा एक बयान है जो उन्होंने हॉलैंड के दारुल हुकूमत हैग से जारी किया था। इस बयान में उन्होंने 6 सवालात उठाए थे। नंबर 1, एक ऐसे मौके पर जब लियाकत अली खान एक अहम पॉलिसी बयान देने वाले थे और अपनी मकबूलियत की इंतहा पर थे, उन्हें क्यों कत्ल कर दिया गया। नंबर 2, कातिल को ऐसे मौके पर जब वो बेबस किया जा चुका था क्यों हलाक कर दिया गया। नंबर 3, कातिल पर गोली चलाने वाले पुलिस एहलकार को सजा देने के बजाय तरक्की क्यों दी गई। नंबर 4, मुल्क में चंद अहम और बाअसर अफराद लियाकत अली खान को अपने रास्ते से क्यों हटाना चाहते थे। नंबर 5, कायद-ए-आज़म की शख्सियत और उनके नाम को बाज अहम मामलात में क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। नंबर 6, इन तमाम सवालात के जवाबात फराहम क्यों नहीं किए जाते। मोहतरमा रैना लियाकत अली खान के उठाए गए ये सवालात आज भी अपने जवाब के मुंतजिर हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।